So students, आज का topic today we are going to start with the topic of error handling during file operations. What kind of error would occur during the file handling operations and how we can handle that errors. So there are a few points are given that what kind of error and how we can handle that error. So first of all, the first point, a file which we are attempting to open for reading does not exist. If we are trying to open some file and that particular file is not available in our system. Fine. Second, the file name used for a new file may already exist. Means if we are creating some new file and the name which we are giving to that new file, the particular name file is already exists in the system. So how can we handle that kind of error? After that, third, we are attempting an invalid operation such as reading past the end of the file. Means the reading operation we are performing and there is no data in that file. So it will be reading at the end of the file. Fourth, there may not any space in the disk for storing more data. Means we are working on the particular file and that particular file does not have enough space for storing the data. Next, we may use invalid file name. Invalid file name means that we are giving some extension to the file like doc, XLS. So if any invalid extension which was not supported by the file handling, that may cause invalid file name. Next point, we may attempt to perform an operation when the file is not opened. For that purpose, the C++ file stream inherit a stream state member for the class IOS. This member record information on the status of the file is being currently used. The meaning of that last point is that if we are performing some operation on the file which is already opened and already working on that file is going through. So if one program is performing some operation on that file with the help of with the concern of another program, it is quite impossible to perform at the same time on same file at particular operation. मीन्स कि अगर हमारे पास कोई फाइल पहले से खुली हुई है जिसमें हम कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, वो रीडिंग स्टेट में है, मतलब स्ट्रीमिंग स्टेट में है, स्ट्रीमिंग का मतलब वो रन हो रही है, ठीक है, और अगर हम उस पर दोबारा कोई और ऑपरेशन उसी समय परफॉर्म कर रहे हैं जिस समय उस पर कोई स्ट्रीमिंग चल रही है, ठीक है, तो वो भी एक एरर का कॉज है, वो भी एक एरर को क्रिएट करता है, ठीक है। तो कुछ एरर हैंडलिंग फंक्शंस हैं कि कैसे हम इस टाइप की अगर एरर्स अगर होती है तो फंक्शंस के थ्रू हम कैसे उन्हें अवॉइड कर सकते हैं। तो जैसे ईओएफ फंक्शन है, ईओएफ फंक्शन क्या था, एंड ऑफ फाइल, मैंने पहले भी बताया था कल के लेक्चर में कि ये या तो जीरो वैल्यू रिटर्न करेगा या नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। जैसे कि लिखा हुआ है इसमें रिटर्न ट्रू नॉन जीरो वैल्यू, मीन्स अगर नॉन जीरो वैल्यू होगी देन इट विल बी रिटर्न ट्रू, otherwise it will return false. If any non-zero value occurs in that function, as such we are applied in the earlier program UF function. UF क्या करेगा कि एंड ऑफ द फाइल, फाइल की एंड लोकेशन पे जाएगा और वो तभी जाएगा जब वो नॉन जीरो वैल्यू होगी। अगर जीरो वैल्यू होगी तो वो एंड ऑफ द फाइल की कोई लोकेशन होगी नहीं, फर्स्ट लोकेशन ही यूएफ होगी, तो वो कैसे रिटर्न कर देगा, जीरो रिटर्न कर देगा, ठीक है। अगर वो जीरो रिटर्न करता है तो वो मतलब कुछ भी रीडिंग परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अगर वो नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करता है तो इसका मतलब क्या है कि वो रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है और उसे एंड ऑफ द फाइल एक पर्टिकुलर प्लेस पे, चाहे दो लाइन की फाइल हो चाहे एक लाइन की फाइल हो, जहां भी वो लाइन एंड होगी वहां पे उसे एंड ऑफ द फाइल मिल जाएगा, ठीक है। फेल, फेल क्या है, जैसे हम फेल फंक्शन अगर यूज करेंगे, रिटर्न ट्रू व्हेन एन इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन हैज फेल्ड।
मीन्स दैट अगर हम कोई ऐसी फाइल पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक है, तो फेल फंक्शन के थ्रू हमें क्या मिलेगा कि जो भी हम इनपुट या आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें फेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ठीक है, वो वैल्यू ट्रू रिटर्न कर देगा कि दिस पर्टिकुलर नेम फाइल डज नॉट एग्जिस्ट एंड फेल्स बिकम ट्रू। तो वो उसे रीड भी नहीं करेगा ना राइट करेगा, तो वो जाएगा ही नहीं फाइल पर। नेक्स्ट क्या है, बैड। बैड में क्या है, रिटर्न्स ट्रू इफ एन इनवैलिड ऑपरेशन इज अटेम्प्टेड। मीन्स कि बैड फंक्शंस के थ्रू अगर हम कोई इनवैलिड ऑपरेशन अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, और एनी अनरिकवर्ड एरर हैज अकर्ड, और कोई एक ऐसी एरर अकर हो जाती है जिसपे हम रिकवर नहीं हो सकते हैं, रिकवर नहीं हो पाते हैं, तब हमारा कौन सा फंक्शन वर्क यूज कर सकते हैं, हम बैड फंक्शन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो भी हमारी एरर हो रही है उससे वो हमें पहले ही उस चीज के बारे में बता देगा कि ये इनवैलिड फाइल ऑपरेशन है। और बैड एक्टिव अगर हमारे प्रोग्राम में लगा हुआ होगा तो वो उस पर्टिकुलर एरर को हैंडल करने में कैपेबल होगा कि अगर वो इनवैलिड ऑपरेशन किसी इनवैलिड फाइल पे वर्क परफॉर्म करवा रहा है तो बैड फंक्शंस के थ्रू वो उस इनवैलिड फाइल को की एरर को मतलब उसके अंदर जाएगा ही नहीं। ठीक है, ट्रू रिटर्न कर देगा वो वैल्यू अगर कोई इनवैलिड फाइल एग्जिस्ट कर रही होगी तो। ठीक है, और अगर कोई इनवैलिड फाइल नहीं होगी हम पहले ही चेक कर लेंगे कि आइदर द फाइल इज इनवैलिड और वैलिड बैड फंक्शन के थ्रू। अगर वो इनवैलिड होगी तो रिटर्न बैड में वैल्यू रिटर्न ट्रू हो जाएगी, और अगर वो इनवैलिड नहीं होगी तो बैड में फंक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स रिटर्न हो जाएगी। ऐसे ही बैड का अपोजिट क्या है, गुड। रिटर्न्स ट्रू इफ नो एरर अकर्ड। कि बैड में क्या है कि अगर ट्रू इनवैलिड होगा तो रिटर्न ट्रू करेगा बैड में, और गुड में क्या करेगा कि अगर रिटर्न ट्रू करेगा अगर प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है। दिस मीन्स ऑल द अबव फंक्शन आर फॉल्स। अगर गुड की वैल्यू ट्रू होती है तो जितने भी हमने ये तीनों फंक्शन पढ़े हैं, बैड, फेल, ईओएफ, तो ये सब क्या है, फॉल्स है। ठीक है, ना तो वो पर्टिकुलर प्रोग्राम में कोई बैड वाली कंडीशन मिली, ना फेल वाली कंडीशन मिली, और ना ही ईओएफ उसमें एंड ऑफ फाइल ट्रू मिला। ठीक है, तो गुड अगर ट्रू होगा तो ऊपर के बाकी तीनों फंक्शंस क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई ये चीज। फॉर इंस्टेंस if file dot good function is true all is well with the stream file। मतलब अगर गुड की वैल्यू ट्रू है तो सारा जो भी हम वर्किंग पर किसी पर्टिकुलर फाइल पे कर रहे हैं तो उसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। मीन्स any there is no any kind of problem in that particular file if the value of good function will be true। Means if the value of good function is true, then the value of UF is also false, then the value of fail is also false, then the value of bad is also false। ठीक है, एज सच तुम लोगों को ये फंक्शंस यूज करके इतने ऐसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम नहीं बनाने हैं। ठीक है, बस तुम्हें ये फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए कि ये फंक्शंस की एक्चुअल में वर्किंग होती क्या है। These functions can be used as appropriate in the program to locate the status of the file stream and thereby to take the necessary corrective measures। For example, इस स्ट्रीम को एक एग्जांपल दे रखा है। अगर हमने कोई फाइल ओपन करी, ये एक सिंटैक्स सिखा रहा हूँ मैं तुम लोगों को कि कैसे ये पर्टिकुलर फंक्शंस यूज होंगे। ठीक है, जैसे आई एफ स्ट्रीम हम पहले प्रोग्राम में डाला था हमने पहले वाले में। इन फाइल अगर हम उसको फाइल को ओपन कर रहे हैं, फाइल के अंदर वर्क कर रहे हैं, तो ओपन फंक्शन एबीसी नाम की हमारी कोई फाइल है, क्या कर रहे हैं हम कि नॉट से इन फाइल डॉट फिल की वैल्यू को वाइल लूप में कंडीशन चेक करा रहे हैं, प्रोसेस करवा रहे हैं फाइल। इफ इन फाइल डॉट यूएफ इफ कंडीशन के साथ अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो टर्मिनेट हो जाएगा, और फॉल्स होती है तो इसके अंदर जाएगा ही नहीं। तो किसमें जाएगा, एल्स में। एल्स में क्या चेक करेगा, बैड को चेक करेगा। अगर बैड की कंडीशन ट्रू होती है तो क्या है, देयर इज सम एरर इन द पर्टिकुलर प्रोग्राम। और अगर बैड की कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर एल्स में चला जाएगा। एल्स में हमें क्या मिलना है, क्लियर। क्लियर एरर स्टेट। क्लियर एरर स्टेट का मतलब कि वो प्रोग्राम को
क्लियर कर देगा कि एरर क्यों आ रही है, किस चीज की तरफ एरर आ रही है। द फंक्शन क्लियर रीसेट द एरर स्टेट सो दैट फ्यूचर ऑपरेशन कैन बी अटेम्प्टेड। मीन्स कि जो भी एरर क्रिएट हो रही थी उसको वो क्लियर कर देगा, मोड अप्लाई कर देगा, ताकि दोबारा अगर हम प्रोग्राम को रन कराएं तो भी वो चीज़ हमारी कंपाइल हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट में क्या चीज़ें हैं, जैसे हम सी में भी पढ़ चुके हैं और सी प्लस प्लस में भी पढ़ रहे हैं कि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट क्या होता है। देख लेते हैं क्या चीज़ होती है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। जो भी हम आर्ग्यूमेंट लिस्ट में कंडीशंस देते हैं वो हमारा कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट होता है। जैसे like C and C++ also support the features of command line argument, passing the argument at the time of invoking the program. Means passing the argument list at the time of compiling of the program. They are typically used to pass the name of data files, example, exam, date, result. मतलब कि जब हम प्रोग्राम को रन करा रहे हैं, रन कराते समय अगर हम उसमें कोई वैल्यू पास करा रहे हैं तो वो हमारा क्या होता है कि आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं हम इन्वोकिंग के समय पे। इन्वोकिंग के टाइम पे मतलब जब हम प्रोग्राम को इन्वोक कर रहे हैं तभी हम उसमें आर्ग्यूमेंट की वैल्यू पास करा रहे हैं। जैसे कि हमने कोई प्रोग्राम रन कराया और वैल्यू डाल दी एग्जाम डेटा रिजल्ट। हियर एग्जाम इज द नेम ऑफ फाइल। एग्जाम क्या है, फाइल का नाम है। ठीक है, एग्जाम नाम की कोई फाइल है कंटेनिंग द प्रोग्राम टू बी एग्जीक्यूटेड एंड डेटा एंड रिजल्ट आर द फाइल नेम पास टू द प्रोग्राम एज कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। मीन्स एक मेन फाइल क्या है, एग्जाम की जो है वो मेन फाइल है, और रन टाइम पे हम एक दो फाइलें और क्रिएट कर रहे हैं, डेटा और एक रिजल्ट। ठीक है, जो भी हम फाइल का नेम देंगे वो हमेशा स्पेस के बाद ही देंगे। जैसे एग्जाम के बाद स्पेस दिया तब डेटा फाइल का नाम दिया, फिर स्पेस दिया तो रिजल्ट्स का नाम दिया। द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज ऑलवेज द फाइल नेम एंड कंटेनिंग द प्रोग्राम टू बी एग्जीक्यूटेड। पहला क्या होगा, हमेशा फाइल का नाम होगा। ठीक है, और सेकेंड और थर्ड क्या होंगे, प्रोग्राम होंगे जो कि हम उस पर्टिकुलर फाइल में पास करा रहे हैं। द मेन फंक्शन which have to be using upon now without any argument can take two argument as shown below। कि जैसे मेन आर्ग्यूमेंट में हमने दिया है आर्ग्यू, ये एग्जांपल देख लो, एक कैरेक्टर टाइप पॉइंटर लिया है। ठीक है, एक आर्ग सी लिया है। कैसे काम करेगा, द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट आर्ग सी रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट इन कमांड लाइन। आर्ग सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हम दे रहे हैं कमांड लाइन के थ्रू। द सेकेंड इज आर्ग वी। आर्ग वी जो हमने ये पैरामीटर वाला दिया है, आर्ग वी इज एन एरे ऑफ कैरेक्टर टाइप पॉइंटर दैट पॉइंट्स टू द कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। कि हम एरे दे रहे हैं, अभी हमने कोई साइज नहीं दिया है तो हम इसमें कितनी भी वैल्यूज को एंटर करा सकते हैं। अब जैसे क्या है कि एग्जाम हमारी है तो हमने एग्जाम वाले में दो आर्ग्यूमेंट पास करा दिए, डेटा और रिजल्ट। तो द वैल्यू ऑफ आर्ग सी वुड बी थ्री। थ्री क्यों है, क्योंकि एक एग्जाम है, एक डेटा है, एक रिजल्ट है, तीन वैल्यू है। एंड द argv would be an array of three pointers to string as shown। जैसे इसमें दिखा रखा है कि argv क्या है कि 0th लोकेशन पे एग्जाम वाली फाइल चली जाएगी, और argv के फर्स्ट मेमोरी लोकेशन पे डेटा वाली फाइल चली जाएगी, और argv के टू वाली लोकेशन पे क्या चली जाएगी, रिजल्ट वाली फाइल चली जाएगी। ठीक है, तो जितनी भी हम फाइल, जितने भी नाम देंगे हम इसको कमांड लाइन पे रन टाइम पे, उतनी ही वो क्या कर देगा, फाइल्स को क्रिएट कर देगा। ठीक है, क्योंकि आर्गवी क्या है, एरे के थ्रू क्या होगा कि उनकी वैल्यू को स्टोर कर देगा, जीरो से स्टार्ट करेगा और सीरीज से स्टोर करता चला जाएगा। द argv जीरो ऑलवेज रिप्रेजेंट द कमांड नेम दैट इन्वोक द प्रोग्राम। जीरो पे क्या होगा, पहला जो फाइल का नाम हुआ उसके बाद क्या होंगे, प्रोग्राम के नेम। ठीक है, जैसे arg जीरो ऑलवेज रिप्रेजेंट द कमांड नेम दैट इन्वोक्स द प्रोग्राम। प्रोग्राम को कौन इन्वोक कर रहा है, एग्जाम वाली फाइल इन्वोक कर रही है। ठीक है, द करेक्टर पॉइंटर argv1 and the argv2 can be used as file name in the file opening statement as shown। क्या करेगा कि ओपन करेगा डेटा वाली, जैसे कि अगर हमने दिया इनलाइन डॉट ओपन
RB1, मान लो मुझे कौन सी डेटा वाली फाइल खोलनी है, तो क्या कर देगा, ओपन कर देगा डेटा वाली फाइल को रीड करने के लिए। ठीक है, RB2 करना है, ओपन करना है आउट फाइल, तो ये हमारी रीडिंग के लिए ओपन होगी, इन लाइन यूज कर रहे हैं इसलिए, और इसमें आउट फाइल यूज कर रहे हैं तो किस लिए होगी, हमारी राइटिंग के लिए ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो यही तुम्हारी यूनिट में था। बाकी इसकी कुछ समरी है, ये समरी देख लेना। ये नोट्स मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ तुम लोगों के उसमें। ठीक है, ये नोट्स तुम देख लेना। बाकी क्वेश्चंस हैं, अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना, करके देख लेना इनको, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस इसके अंदर मिल जाएंगे जो कि मैंने नोट्स किए हैं। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर हमारा कहा क्या था, 5th यूनिट तक था। तुम्हें इनके शुरू के बस वही प्रोग्राम देखने हैं जो मैंने कराए हैं। बाकी ये प्रोग्राम्स, इनका यूज तुम्हें, इनके सिंटेक्स पता होने चाहिए कि सिंटेक्स कैसे लिखते हैं, क्योंकि अगर ये फाइल हैंडलिंग इतना कॉम्प्लिकेटेड तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ ओवरव्यू है फाइल हैंडलिंग। ठीक है, बस तुम्हें इनका ये सब सिंटेक्स और कैसे वर्क करते हैं, इनकी फंक्शनिंग ये पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज तुम लोग देख लेना। अब ये 5th यूनिट मैंने कवर कर दी है पूरी। समरी में देख लेना कि समरी में क्या दिया है। स्ट्रीम इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ डेटा। स्ट्रीमिंग मतलब अगर कोई फाइल स्ट्रीम कर रही है तो मतलब कि वो फाइल उस समय मेन मेमोरी में है और वो रनिंग मोड में है। ठीक है, द आई स्ट्रीम एंड ओ स्ट्रीम क्लास कंट्रोल इनपुट एंड आउटपुट। ये मैंने तुम्हें बताया था, ये पढ़ाया था कि आई स्ट्रीम किस लिए यूज होती है, इनपुट के लिए, और ओ स्ट्रीम आउटपुट के लिए यूज होती है। The IOStream class is also a drive class। IOStream और की क्या है, कि ड्राइव क्लास है। ठीक है, हाँ अनमोल क्या कह रहा है, अनमोल। सर आपकी आवाज ना आ रही, क्लियर नहीं हो रही बीच बीच। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही, बीच बीच में से कट रही है। आवाज क्लियर नहीं हो रही है, शुरू से ही नहीं हुई या अभी नहीं हो रही। अभी सर पहले सही आ रही थी, अब बीच में से बंद हो गई। चलो, बैठा तो मैं उसी जगह हूँ जहाँ रोज लेक्चर लेता हूँ, उसी जगह से दे रहा हूँ नेटवर्क तो। इतनी हो सकता है थोड़ा नेट का प्रॉब्लम हो। अब आ रही है हाँ थोड़ी ठीक आ रही है अब। हाँ। हाँ सर अब सही हुई। ठीक है, ठीक है। तो मैं यही समरी तुम लोगों को रिवाइज करवा रहा था कि क्या क्या हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट बता दिया, सेकंड बता दिया था कि सेकंड में हमने आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम पढ़ी थी, जो कि किस लिए है, हमारी क्लासेस को कंट्रोल करने के लिए, इनपुट फंक्शन और आउटपुट फंक्शंस को परफॉर्म कराने के लिए। फिर क्या है, आई स्ट्रीम क्लास जो है वो भी हमारी ड्राइव क्लास है। इट इज ड्राइव फ्रॉम आई स्ट्रीम एंड ओ स्ट्रीम क्लासेस की। आई स्ट्रीम भी हमारी आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम क्लासेस से ड्राइव है। देर आर टू मोर, जो मैंने पहले सबसे पहले डायग्राम दिखाया था तुम लोगों को, वही पूरे डायग्राम की इसमें समरी है। देखो चाहो तो मैं अभी दिखा देता हूँ वो वाला डायग्राम, जो तुम ये वाला डायग्राम। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम हमारी जो मेन फाइल्स हैं इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए, उन्हीं से ड्राइव्ड है हमारी आई ओ स्ट्रीम। ठीक है, और एफ स्ट्रीम हमारी क्या है, सबकी बेस क्लास है। इससे कौन, एफ स्ट्रीम जो है हमारी सबकी बेस क्लास है, इसकी पेरेंट क्लास कौन कौन सी है, कौन सी इसकी ड्राइव क्लास है, आई एफ स्ट्रीम, ओ एफ स्ट्रीम, एफ स्ट्रीम, ये सब इसकी क्या है, चाइल्ड क्लासेस। तो ये किस लिए यूज होती है, ये फाइल हैंडलिंग के लिए यूज होती है। ऐसे ही फाइल हैंडलिंग में आई ओ स्ट्रीम क्या है, ड्राइव क्लास है, इनकी बेस क्लास क्या है, आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम। ठीक है, समरी में क्या हो रहा है कि तुम्हारा जो भी तुम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा है वही सब एक तरीके से तुम लोगों को रिवाइज के तौर पे वो चीज दिखाई गई है। फिर क्या है, देयर आर टू मेथड्स कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास। जैसे हमने दो मेथड्स पढ़े थे, एक तो हम क्या करते हैं कि कंस्ट्रक्टर के थ्रू फाइल पे वर्क परफॉर्म करते हैं, जिसमें हम केवल एक ही फाइल पे एक टाइम पे वर्क कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या था, ओपन के थ्रू हम वर्क परफॉर्म करते हैं, जैसे मैंने एक प्रोग्राम भी दिखाया था, जिसमें हम दो फाइल पे लगातार एक साथ काम कर सकते हैं।
ठीक है, अगर तुम लोगों ने पहली वाली क्लास मेरी देखी होगी तो उसमें वो चीज़ मैंने प्रोग्राम के थ्रू तुम लोगों को दिखाई। द क्लास ओ स्ट्रीम क्रिएट्स आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट एंड आई एफ स्ट्रीम क्रिएट इनपुट स्ट्रीम। ये तुम लोगों को पता ही है, ओ स्ट्रीम आउटपुट के लिए और आई एफ स्ट्रीम इनपुट फाइल्स के लिए होती है। द क्लोज क्लोज किस लिए यूज करते हैं कि जो फाइल हमने ओपन मोड में रखी है उसको चाहे हम रीड ऑपरेशन पर परफॉर्म कर रहे हो चाहे हम राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, बाद में उसमें क्लोज फंक्शन हमें लगाना पड़ता है, तभी हम दूसरी फाइल पे कोई दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, आइदर रीडिंग द फाइल और राइटिंग द फाइल। ईओएफ ईओएफ मैंने बताया था कि एंड ऑफ द फाइल किस लिए यूज होता है कि फाइल का लास्ट पॉइंट, मतलब अगर हम अपेंड करते हैं किसी फाइल में कुछ भी, मतलब कोई डेटा अगर हम फाइल पहले भी क्रिएट कर चुके हैं और उसमें कोई नई एंट्री करना चाहते हैं तो कहाँ से करेंगे, जहाँ पे उसका ईओएफ मिलेगा, एंड ऑफ द फाइल की लोकेशन मिलेगी। और अगर ब्लैंक फाइल है तो ईओएफ की क्या होगी, फॉल्स वैल्यू रिटर्न, यूएफ की वैल्यू ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रू का मतलब कि उसमें कोई डेटा ही नहीं है, तो बिगनिंग पे ही यूएफ लाइक करेगा। सीजी और सीपी ये सब भी तुम लोगों को बताया था, पुट और गेट फंक्शंस बताए थे, रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं। आरजी, जैसे आरजी अभी हमने यूज करा था कि जो एरे का हमने साइज दिया था, तो उसमें कि जो भी हम इनपुट आउटपुट स्ट्रीमिंग के लिए अगर कोई वैल्यू इनपुट इन करा रहे हैं, कोई वैल्यू इसके अंदर इन करा रहे हैं, तो अगर तीन फाइल्स तीन प्रोग्राम्स हम इन करा रहे हैं तो 0 1 2 तीन लोकेशंस पे वो वैल्यू एंटर हो जाएगी। क्लियर का मतलब अगर जैसे यूएफ फेल और बैड हमने यूज करे थे, तो अगर वो उनकी वैल्यू ट्रू होती है तो क्लियर हमें यूज करना पड़ता है। क्लियर से क्या होता है कि सारी वैल्यू रीसेट हो जाती है। ठीक है, यूएफ और फेल भी इसीलिए हमारा होता है एंड ऑफ द फाइल को में अगर कोई एरर है तो क्लियर करेंगे, फेल में फेल की वैल्यू अगर ट्रू है तो उसे क्लियर करेंगे। फाइल मोड, ये हमने पढ़ा था, ओपन और क्लोज हमारे फाइल मोड होते हैं। ठीक है, गेट पुट ये सब हम पढ़ चुके हैं, रीड करने का डेटा। सीक जी सीक पी ये भी मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, ये कुछ एक्सरसाइज है, ये देख लेना, तुम नहीं समझ में आया तो पूछ लेना मुझसे। हाँ अभिषेक बता। सर मैं ये कह रहा था, ये सीक जी और सीक पी और टेल पी सब किस तरह वर्क करते हैं सर, ये पॉइंटर? सीख जी, जैसे हमने किसी पर्टिकुलर फाइल की उस पे जाना है पोजीशन पे, तो सीख जी और सीख पी का हमारा वर्क होता है। मैंने प्रोग्राम दिखाया तो था इससे पहले, पहले ये वाले सर पे। वो मैंने देखा था, जैसे कि सीक जी है तो सीक जी हम्म। हम जैसे कोई स्पेसिफिक लोकेशन है उस पर जाना है, तो हम किस तरह इसका यूज कर सकते हैं? तो हम किसी किसी मतलब किसी बर्ड के पोजीशन पे आ सकते हैं या किसी बर्ड की लोकेशन पे पहुंच सकते हैं इसके द्वारा? जो भी तुम फाइल इसमें क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, उस फाइल यस के सर। थ्रू तुम किसी पर्टिकुलर फाइल में अगर रीड परफॉर्म कराना चाह रहे हो या राइट परफॉर्म कराना चाह रहे हो, ठीक है, तो कौन सी पोजीशन से तुम राइट परफॉर्म कराना चाह रहे हो। जैसे ये एक मैंने दिख रहा है, मेरा लैपटॉप दिख रहा है स्क्रीन, यस सर। ये दिखा है जैसे फाइल डॉट सी जी 0। तो ये जी क्या है कि जो भी हमने स्ट्रिंग डाली है, ये आई में स्ट्रिंग की ओके। कुछ वैल्यू डाली है, ठीक है, टेक्स्ट नाम सर की जो भी फाइल है, तो ये 0 से रीड करना शुरू कर दे। कहाँ तक, जहाँ तक ये आई की वैल्यू, जहाँ तक इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग की लेंथ होगी वो सब कुछ रीड करना शुरू कर देगा, और वो कंटेंट उठा के फाइल में डाल देगा, और फाइल की वैल्यू को हम गेट करा रहे हैं और सी एच को बाद में हम प्रिंट करा रहे हैं इस तरीके से। तो ये किस अच्छा लिए तो होता है सर। कि जो भी कंटेंट हमारी फाइल में है, ठीक है ना, जितनी भी जैसे यस सर। 4 वर्ड पड़े हुए हैं, अमित नाम का कोई वर्ड पड़ा हुआ है, तो अमित को 0 से लेकर AMIT, ठीक है, 4 तक रीड करेगा वो। 4 तक रीड करने के बाद जब उसे एंड ऑफ द फाइल मिल जाएगा तो वो उसकी वैल्यू को शिफ्ट कर देगा पर्टिकुलर जिसमें भी हम डाल रहे हैं वो वैल्यू। जैसे फाइल में अगर हम वो वैल्यू डाल रहे हैं तो यहाँ पे फाइल में वो वैल्यू आ जाएगी और सी एच के थ्रू वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। और सर सीक पी सर किस लिए होगा फिर सीक पी? सीक भी होता है वैल्यू को पुट करने के लिए, जैसे यहाँ पे मैंने फाइल डॉट
सीक जी लिखा है तो यहाँ अगर मैं फाइल डॉट सीक पी लिखता और कोई लोकेशन लिख देता, मान लो 1 लिख देता, तो 1 पे वो यस सर। वैल्यू राइट का ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अच्छा, मतलब वो आउटपुट देगा हमारे लिए एक तरीके से। हाँ, वो उसके अंदर वैल्यू को राइट कर देगा। ओके ओके। ठीक है, वो उसके अंदर वैल्यू को राइट कर देगा सीपी को। मैं तुम्हें इसकी देखता हूँ, एक फाइल और बनाई थी मैंने, तुम लोगों को अगर मिल जाती है तो उसको दिखाता हूँ सीपी। और सर ये जैसे टेल जी है, तो टेल जी से सर हम उस पोजीशन की मतलब पॉइंटर को पा सकते हैं, गेट पॉइंटर। हाँ, पॉइंटर की लोकेशन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन सी एड्रेस पे है। यस सर, ओके ओके। ठीक है, मैं ठीक है। देखता हूँ सीपी सीपी वाला मिल जाता है। नहीं तो मैं सीपी की ना, तो मैं एक अलग से फाइल डाल दूंगा इस पे। हाँ, ये सर थोड़ी कंफ्यूजिंग हो रही है इसमें करने में। हाँ, बहुत। देखो सीक जी क्या है, इज यूज टू मूव द गेट पॉइंटर टू अ डिस्क्राइब्ड लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंटर। कि किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे जिस पे हम पॉइंटर को डालना चाहते हैं, जैसे हमने वहां पे 0 पे डाला था, 0 हमारी पर्टिकुलर लोकेशन होगी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, इनपुट ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं सी जी, और कहाँ पे डाला हमने, बिगनिंग पे डाल दिया। तो बिगनिंग क्या होगी हमारी, 0 मतलब जहाँ से हमारा रीड करना शुरू कर रहा है। ठीक है, और यस सर। टेल जी क्या कर रहा है, इज यूज टू नो वेयर द गेट पॉइंटर इज इन अ फाइल। ये बताएगा कि कहाँ पे एट पर्टिकुलर, उस पर्टिकुलर फाइल में किस पर्टिकुलर लोकेशन पे हमारा पॉइंटर ब्लिंक कर रहा है। कि जैसे ये मेरा कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, ठीक है, नंबर पे ब्लिंक कर रहा है, तो यस सर। टेल जी हमें क्या बताएगा कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पे हमारा वो पॉइंटर ब्लिंक कर रहा है, उसका एड्रेस वो आइडेंटिफाई करके दे देगा। ठीक है, बस तुम्हें इनकी वर्किंग ही पता हो, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड तुम लोगों में प्रोग्राम नहीं है। सीपी क्या करेगा, इज यूज टू मूव द पुट पॉइंटर। पुट पॉइंटर के लिए हम सीपी यूज करते हैं कि कहाँ पे हमें पॉइंटर रखना है जहाँ से हम राइट करना शुरू कर दें। ठीक है, जैसे इसमें बिगनिंग दे रखा है, तो हमने फर्स्ट लोकेशन पे, 0th लोकेशन पे हमने पॉइंटर को रख दिया, और वहां से हम सीपी के थ्रू राइट करना शुरू कर सकते हैं। तो वो उसमें जो भी एडिट हम कर रहे हैं, जो भी हम नई चीज फाइल के अंदर डाल रहे हैं, वो उसके थ्रू एंटर हो जाएगी। ठीक है, टेलपी क्या करता है, टेलपी इज यूज टू नो वेयर द पुट पॉइंटर इज इन अ फाइल। ठीक है, टेल जी क्या कर रहा था, गेट पॉइंटर की लोकेशन दे रहा था, और टेल पी क्या कर रहा है, पुट पॉइंटर की लोकेशन दे रहा है कि कहाँ पे हमने पॉइंटर को सीक पी को रखा था, वो कौन से एड्रेस पे था। ठीक है, सीक पी टेल पी के साथ कोलेबरेट है, और सीक जी टेल जी के साथ कोलेबरेट। ठीक है, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये सारी इसमें दे रखी है सिंटेक्स के सही, ये तुम लोगों को पढ़ने में आसानी रहेगी इसकी। ठीक है, मैं एक ही इसमें कर देता हूँ ताकि तुम्हारा स्क्रीनशॉट आ जाए। लो, इतना है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो और छोटा कर देते हैं। ठीक है, बस इतना है, ये ले लो स्क्रीनशॉट। शुद्ध रिजल्ट ले दे रहा हूँ। मुर्शद, मुर्शद रजा। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि जो फ्रेंड फंक्शंस का जो मैंने कहा था, वो देख लेते हैं फ्रेंड फंक्शंस। फ्रेंड फंक्शंस हमारे किस काम आते हैं, बताया था मैंने पहले।
कि फ्रेंड फंक्शंस को हम किस लिए यूज करते हैं। ठीक है, फ्रेंड फंक्शंस का हमारे क्यों वर्क होता है, किस लिए यूज करते हैं। अब ये क्योंकि सर अभिषेक किसी से बताओ। दूसरे सर क्लास की जो डाटा है उसका ऑपरेंड फंक्शन से एक्सेस कर सकते हैं उसके द्वारा, हाँ, जो जो भी भी वेरिएबल्स हैं हमारा उसके। कौन से वेरिएबल्स को, जो भी हमारे प्राइवेट हैं या जो भी हमारे प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं, उनको हम फ्रेंड्स के थ्रू यूज कर सकते एक्सेस हैं, कर सकते डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है हैं। ना। यस सर। पहले हम कैसे यूज करते थे कि हम क्या करते थे, पब्लिक में उसका फंक्शन बनाते थे, फंक्शन के थ्रू एक्सेस कर पाते थे। लेकिन अगर हम फ्रेंड क्लास या फ्रेंड फंक्शन बनाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, उसके वेरिएबल्स को डायरेक्टली यूज कर डायरेक्ट लें। यूज कर सकते हैं। अब फ्रेंड क्लास क्या होती है? फ्रेंड क्लास इज अ क्लास दैट कैन एक्सेस द प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ अ class in which it is declared as friend. This is needed when we want to allow a particular class to access the private and protected members of a class. ठीक है, वही डेफिनेशन है कि कैसे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो एक प्रैक्टिकल के थ्रू एक प्रोग्राम मैंने इसमें दे रखा है, प्रोग्राम में समझा देता हूँ हम लोगों को। ठीक है, प्रोग्राम में क्या करा है, एक हमने क्लास बनाई है फ्रेंड करके। देखो, एक्स वाई जेड एक क्लास बनाई है, इसमें प्राइवेट वेरिएबल लिया है सी एच, इसमें वैल्यू कैरेक्टर में ए दे दी है, एक नंबर लिया है 11। ठीक है, अब पब्लिक में हमने क्या दिया है, फ्रेंड की एक फ्रेंड नाम की फ्रेंड के थ्रू फ्रेंड कीवर्ड यूज करके हमने क्लास बनाई है एबीसी। तो कमेंट में क्या लिखा है, दिस स्टेटमेंट वुड मेक अ क्लास एबीसी अ फ्रेंड क्लास ऑफ एक्स वाई जेड। दिस मीन्स दैट एबीसी कैन एक्सेस द प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ एक्स वाई जेड। कि एबीसी जो हमने फ्रेंड क्लास बनाई है वो एक्स वाई जेड के प्राइवेट और पब्लिक मेंबर्स को एक्सेस कर सकती है। ठीक है, अब क्लास की हमने एबीसी की डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पे। पब्लिक में हमने क्या कर दिया, वॉइड डिस्प्ले एक्स वाई जेड ऑब्जेक्ट। ये हमने क्या करा है, एक्स वाई जेड जो हमारी मेन क्लास थी उसके थ्रू आर्ग्यूमेंट पास करा है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर लिया, इससे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट जो भी प्राइवेट वेरिएबल्स हैं उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हम कोई भी फ्रेंड के अंदर फंक्शन बनाएंगे तो जो भी हमारी बेस क्लास है, जैसे जिसके अंदर हमने फ्रेंड फंक्शन दिया है उस क्लास का नाम, और एक हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, जैसे हम मेन में ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना, उसी तरीके से हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे उस फंक्शन के अंदर। तो हमने क्या करा, ओबीजे करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब क्या करा, सी आउट ओबीजे डॉट सी एच। सी एच क्या था, इसका प्राइवेट मेंबर था एक्स वाई जेड का, तो सी एच को इसने क्या यस करा, सर। डायरेक्ट एक्सेस कर लिया। ठीक है, ऐसे ही नम क्या था, नम भी प्राइवेट मेंबर था, नम को भी इसने डायरेक्ट एक्सेस कर लिया ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारा किसमें बेनिफिट है, अगर हम फ्रेंड कीवर्ड यूज नहीं करते और इस तरीके से करते तो हमारी क्या आ जाती, एरर होती। ठीक है, ये बेनिफिट है फ्रेंड का। अब कैसे, मेन में क्या करा हमने, इंट मेन एबीसी जो हमारी फ्रेंड क्लास थी उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करा। एक ऑब्जेक्ट हमने एक्स वाई जेड का, दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, एक ऑब्जेक्ट हम यहाँ बना चुके थे इसका। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करा। अब डॉट डिस्प्ले में कॉल करा दिया जो भी हमने दूसरी वाली एक्स वाई जेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है, तो डिस्प्ले में जाएगा तो क्या करेगा, उसे ऑब्जेक्ट की वैल्यू मिल जाएगी। और ऑब्जेक्ट की वैल्यू में हम क्या करा रहे हैं, सी एच की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं और नंबर की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। तो आउटपुट हमें क्या दे देगा, सी एच में क्या था ए, और नंबर में क्या ए था 11 वैल्यू। 11। ठीक है, समझ में आ गया ये फ्रेंड क्लास की, फ्रेंड क्लास कैसे वर्किंग परफॉर्म करती है। ठीक है, अब देख लेते हैं फ्रेंड फंक्शन। जैसे कि हम फ्रेंड क्लास बनाते हैं उसी तरीके से हम फ्रेंड फंक्शन बनाते हैं। अब मतलब जो हमारी एक्स वाई जेड जिसके अंदर हम फ्रेंड कीवर्ड यूज कर रहे हैं उसी में हमने फंक्शन बना दिया डिस्प्ले नाम का, और जो हमारी मेन क्लास थी एक्स वाई जेड, और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया उसके अंदर। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारा फ्रेंड फंक्शन है उसे हम ग्लोबली डिक्लेयर करें। ग्लोबली मतलब ना तो किसी क्लास के अंदर ना मेन के अंदर, वो हमारा कैसे डिक्लेयर होता है, ग्लोबली डिक्लेयर होता है। जैसे एक्स वाई जेड क्लास यहाँ पे टर्मिनेट हो गई, सेमीकोलन के बाद टर्मिनेट हो गई, तो हमने क्या बनाया, डिस्प्ले फंक्शन बनाया एक्स वाई जेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, सी आउट नंबर की वैल्यू, सेम वही चीज करी है हमने जैसा उसमें करा था, लेकिन यहाँ पे ये फंक्शन हमारा कैसा है, ग्लोबली डिक्लेयर।
ठीक है, फिर वही ऑब्जेक्ट क्रिएट करा XYZ का, क्योंकि हमारी एक ही क्लास है तो उसी का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड क्लास नहीं है, यहाँ पे फ्रेंड क्या है, फंक्शन है सिर्फ। ठीक है, तो फिर एक ऑब्जेक्ट उसका जो हमने ऑलरेडी क्रिएट करा था वही ऑब्जेक्ट यूज कर लिया, डिस्प्ले के अंदर ऑब्जेक्ट की वैल्यू डाल दी तो डिस्प्ले फंक्शन को रीड करेगा तो ऑब्जेक्ट उसे वहां मिल जाएगा उसके मैच के थ्रू। उस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो वैल्यू हमने असाइन करी है नंबर की और CH की, वो वैल्यू वो उठा के प्रिंट कर देगा। डिफरेंस क्लियर हुआ फ्रेंड फंक्शन और उसका, अभिषेक? यस सर, हो गया क्लियर। ठीक है, एक मेथड और होता है कि क्लास मेंबर्स को हम फ्रेंड कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। कि जैसे अगर हमें कोई एक पहले वाली क्लास बनानी है, ठीक है, इनहेरिटेंस में, कैसे हम वो चीज क्रिएट कर सकते हैं? मलिक खान को ज्यादा क्लियर होगा कुछ? देखो इसमें क्या लिखा है, वी कैन ऑल्सो मेक अ फंक्शन ऑफ वन क्लास एज अ फ्रेंड ऑफ अनदर क्लास। We do this in the same way as we make a function as a friend of a class. The only difference is that we need to write a class name in the declaration before the name of that function in the class whose friend is it is being declared. The friend function is only specified in the class and the entire body is declared outside the class. It will be clear. एग्जाम्पल देख लेते हैं कि यहाँ पे हमने क्या करा है कि एक क्लास हमने सबसे पहले डिक्लेयर कर दी, जैसे क्लास ए। इस टाइप की डिक्लेरेशन को हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड डिक्लेरेशन, जिसमें हम केवल क्लास का नाम देते हैं, ना उसकी बॉडी देते हैं, ना उसका कुछ भी स्ट्रक्चर देते हैं। तो यहाँ क्लास ए दे दिया और सेमीकोलन से